اس کی قوم پر اللہ نے ایسا سیلاب مسلط کر دیا جس نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے اور بعد کی ثقافت تبدیل ہو کر رہ گئی، اور صرف ایمان والے لوگ جو کہ کشتی نوح میں سوار تھے محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ تمام انسان غرق کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا اور بیوی جو کہ نافرمان تھے وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین، آج حضرت نوح علیہ السلام پر یہ ہماری دوسری ویڈیو اپڈیٹ ہے، جس میں ہم اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی کشتی، ان کی قوم پر مسلط ہوئے اللہ کے عذاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان کی زندگی کے مزید دلچسپ و عجیب واقعات سے آپ کے علم میں اضافے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈسکرپشن میں ہماری تمام گزشتہ ویڈیوز اور اس ویڈیو کی پہلی قسط بھی موجود ہے، ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہم نے یہ تاریخی واقعات دنیا کی مستند تواریخ کی کتب سے اخذ کیے ہیں۔ یہ واقعات صرف مسلمانوں کی کتب سے نہیں بلکہ عیسائی، یہودی اور ہندو کتب سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرماتے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے، آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب حضرت نوح کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نوح کی طرف وحی کی گئی، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگایا، 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہوئے تھے۔ آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ یعنی جانور، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کے عرصے میں کشتی تیار ہوئی۔ محمد بن اسحاق حضرت ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 1000 گز تھی۔ حضرت نوح کی کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے کے مطابق عظیم آبدوز تھی۔ یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا اے نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر مذاق اڑاتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت نوح
नूह कश्ती बनाने में मसरूफ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते, फप्तियां कसते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अजाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से कयामत खैज बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के लिए दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह ने अपने बेटे कनान को देखा जो कि ऊंचे मकाम पर मौजूद था। सब कुछ नीस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद वाला और बफरी हुई खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि कश्ती में 80 अशखास सवार थे। हर एक के साथ उनका कुंबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ फेर दिया। कश्ती 40 दिन तक बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। उसके बाद उसका रुख जबल जौदी की तरफ मोड़ दिया गया जहां वो ठहर गई। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सोते फूट पड़े। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जमीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जौदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जब्त कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें नाजिल होंगी। कश्ती नूह आर्क, बाइबल अब्रानी, टिवाट नूह, एक अजाब जो एक तूफान की सूरत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनवाकर सालेह इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफान में जमीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रिवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से ये तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके माबैनुन नहरीन में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील, कुरान मजीद और हिंदू मत की किताबों में पाया जाता है, जिसमें हजरत नूह ने अपने खानदान समेत तूफान से पनाह ली थी। मुख्तलिफ मजहबी रिवायात और कुरान हकीम के मुताबिक जब आपकी उम्र 950 बरस की हो गई, आपकी उम्मत नाफरमानियां कर करके अजाब का मुस्तहिक ठहरी, तो अल्लाह ने आपको अपने इरादे से आगाह किया कि मैं दुनिया को तूफान से तबाह करना चाहता हूँ, और उन्हें ये हुक्म दिया कि अपने खानदान और मवेशियों को बचाने की खातिर एक कश्ती तामीर कर लें। इस पर आप आबादी से दूर तशरीफ ले गए, तख्ते और मेखें फराहम की और कश्ती बनाने लगे। और लोगों को जब पता चला कि आपका मजाक उड़ाया और आपका मजाक यहाँ तक उड़ाया कि कश्ती को गंदगी से भर दिया। लेकिन हुआ ये कि उन्हें एक मोहलक बीमारी ने आन लिया जिसका इलाज इसी गंदगी को ठहराया गया। चुनाचे बहुत जल्द कश्ती धुलधुलाकर साफ हो गई। आखिर एक रोज अल्लाह के हुक्म से तनूर के मकान से पानी उबलना शुरू हो गया। बहुत जल्द रूए जमीन पर फैल गया और नूह और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते तमाम कौम तबाह हो गई सिवाय कश्ती वालों के इन्होंने नस्ल इंसानी का दोबारा आगाज करना था। एक और रिवायत में है कि 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज। जब अजाब नाजिल हुआ तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी, जमीन से चश्मे उबलने लगे, हर चीज गर्क के आब हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी में तैरती रही और 10 मुहर्रम हराम को कोहे जोदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मजार आज भी लबनान में मौजूद है। कौवे और कबूतर का वाकया, ये बहुत मशहूर वाकया है कौवे और कबूतर का। हजरत नूह ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को जमीन की तरफ भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो वो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की वापस नहीं आया, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने फिर कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया
आया और उसके पांव कीचड़ में लिथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क होना शुरू हो चुकी है। एक और रिवायत में है कि तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जौदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मिले सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आपने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए तुम फिर जाओ और रोए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकर्रमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जहर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और उसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और अर्ज किया, ए खुदा के पैगंबर, मेरे गले में खूबसूरत तौक अता फरमाइए, मेरे पाँव में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाइए और मुझे जमीन हरम में सकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर शफकत से हाथ फेरा और उसके लिए ये दुआ फरमाई कि उसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे, उसके पाँव सुर्ख हो जाएं, उसकी नस्ल में खैर और बरकत रहे, उसको जमीन हरम में सकूनत का शर्फ मिल जाए। हजरत नूह जौदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर जिसका नाम समानीन रखा गया, यानी 80 आदमियों की बस्ती। इस दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जबान बदल चुकी थी, यानी 80 जबानें हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे, तो हजरत नूह हर एक की तर्जमानी फरमाते। हजरत कतादा फरमाते हैं कि कौम नूह के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए थे। तीसरे नूह का वाकया, जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार करा दिया। खुद आप और आपके तीनों फरजंद यानी हाम, साम, याफिस और उन तीनों की बीवियां, आपकी मोमना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। आपकी एक बीवी वाला जो काफिर थी और उसका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। हजरत नूह का एक बेटा जो कि मुशरिक था, वो तूफान के वक्त डूब रहा था, तो उन्होंने कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहे। उसने कहा, मेरी फिक्र ना करें, मैं अभी इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। नूह ने कहा, आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इसी असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो अल्लाह के अजाब में गर्क हो गया। हजरत नूह ने अपने रब से अपने बेटे की मगफरत और निजात के लिए अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है, तो ये बेटा भी मेरे घर वालों में से है। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि इसके अमाल अच्छे नहीं है। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने रूए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा और सलामत ना रही थी। रिवायत में है कि नूह अलैहिस्सलाम ने तूफानी अजाब के वक्त अपने बेटे को कश्ती में सवार करना चाहा, मगर वो सवार ना हुआ और पानी की एक मौज उसे बहा कर ले गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह, वो मेरे अहल में से था और तूने मेरे अहल को बचाने का वादा फरमाया था। अल्लाह ताला ने जवाब दिया और फरमाया कि ये लड़का तेरे अहल में से नहीं था क्योंकि वो बद किरदार था। और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आइंदा के लिए तंबीह फरमाई कि आइंदा ऐसा सवाल नहीं करना जिसके बारे में इल्म ना हो। रिवायत में है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया और इन दोनों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दोनों को सवार कर लीजिए, हम आद करते हैं कि जो शख्स सलाम अला नूह फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों उसको जरर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क हो गई। आपकी कश्ती जौदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई और तूफान खत्म होने के बाद आप माए कश्ती वालों के जमीन पर उतर पड़े। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई। आपकी औलाद तमाम रुए जमीन पर फैल कर आबाद हो गई। आदम सानी, चूंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। कश्ती नूह के बारे में जदीद तहकीकात क्या कहती हैं? चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की तहकीकाती टीम इसके बारे में क्या कहती है, ये जानिए हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। और कारीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।